Good morning, dear students. Today also we will continue with our chapter second, which is the polynomials. So in polynomials, today we will discuss about division algorithm of polynomial. Division algorithm. You know, when we divide, we make this type, and here which we write that is dividend, by which we divide known as divisor, and we get as the result that quotient, and here after division we get remainder. So by division algorithm there is the relation between these four terms. We will write dividend equal to divisor multiply quotient plus remainder. After divide we have to prove this one. Values we will have left hand side, right hand side we will solve out, and we show that left hand side and right hand side will be equal. Now see, first of all we learn how to divide a polynomial by a polynomial. Suppose there are two polynomials. He say divide x cube minus 3x square plus 4x plus 2 by x minus 1. This we have to divide. This will be our dividend. By divide means this is a divisor. So we will find the quotient and remainder from here. First step for dividing, we will arrange the polynomial. For dividend, we will arrange the powers, exponents of the variables in decreasing order as well as in divisor also. So here already powers are arranged in decreasing order, so we will directly divide. Write x cube minus 3x square plus 4x plus 2 by x minus 1. So in quotient our first term will be x square. So here first term we have to make this term equal to this one. Here coefficient of x cube is 1, coefficient of x is 1. So numerical values no need to equate. Already 1 is there. It's x. We have to make this x equal to x cube. So we will multiply it by x square. Only first term we have to make equal. Positive already given, so positive. So first term x cube, second term will be minus x square, so we will arrange like term below like term, means minus x square will be there. First step. Then after dividing, what will we do? We will subtract the following polynomial. So it will be plus means makes minus makes a plus. Plus minus will be cancelled down, and this will be minus 3x square plus x square means minus 2x square plus 4x plus 2 as it is. Now again we will make its first term and its first term equal. So symbol negative, here positive, so making this positive as negative we will write minus sign. Okay.
So minus, making this positive as minus, we will write a minus symbol here. Then its coefficient 1, it's a 2, so we will need of 2, so 2 we will write. Now it's x square, so also we need 1 x. Is it clear? Now first term will be minus 2x square, we will multiply this by this one, so minus 2x square equal. Second term will be minus minus plus and 2x. Now this will be symbol change, positive, negative, cancel down. Here 2x will be there, plus के 4x minus 2x, then plus 2x will be remainder and plus 2. Now x is already equal degree 1 degree 1, यहाँ पे 2 coefficient, so here making this as 2x we need to multiply it by 2. Then first term will be 2x and second term will be minus 2. When we subtract this one, this will be minus, this will be positive, cancel down, plus 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 4. Okay, now our quotient is this one, dividend is this, divisor is this, and remainder is this. So we will prove division algorithm, which is dividend equal to divisor multiply quotient plus remainder. Okay, dividend is x cube minus 3x square plus 4x plus 2 will be equal to divisor x minus 1 into quotient x square minus 2x plus 2 and plus remainder 4. Now left hand side will be as it is, we will simplify the right hand side so that we will make this right hand side equal to left hand side. So firstly we will multiply by x, x multiplied by x square, x cube, x multiplied by minus 2x square, x multiplied by plus 2x, minus 1 से multiply करेंगे minus x square plus 2x minus 2 और plus 4 as it is. Okay, after that x cube as it is. Now in square 2x square x square will be minus 3x square. In x 2x will be plus 4x, and in constant term minus 2 plus 4, so we will be plus 2. Now left hand side is equal to right hand side. This will be the proof of a division algorithm. In this way you have to prove. Question will be there, divide this by this and then prove division algorithm theorem. Okay, we will take one more example of division. उसके बाद एग्जांपल देता है वो, फाइंड द क्वोशेंट एंड रिमाइंडर ऑब्टेन्ड ऑन डिवाइडिंग. पॉलिनोमियल्स देता है पी एक्स 4x पावर 4 प्लस 11x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 14x plus 8 by another polynomial x square plus 2x plus 2. This we have to divide and we have to find the quotient and remainder. So we will write 4x square 4 plus 11x cube plus 2x square minus 14x plus 8 divided by x square plus 2x plus 2. So for making first term equal, it's a 4x power 4, it's a x square. So coefficient we need 4 here. X square making x power 4, we need x square.
So when we multiply it by first term, we get 4x 4. With the second term will be 8x क्यूब. So राइट टर्म के नीचे राइट टर्म अरेंज करने आपको. फिर इसके थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो आता है 8x स्क्वायर. तो स्क्वायर वाली टर्म के नीचे स्क्वायर वाले टर्म आप अरेंज करते हैं. ओके, यहाँ पे हमने सिंबल्स चेंज किए इनके. तो ये तो हो गया अपना कट. यहाँ पे रहता है ये 3x क्यूब. 11 प्लस के हैं और 8 माइनस के. प्लस के 2 है, माइनस के 8 है, तो माइनस के 6x स्क्वायर. देन माइनस 14x और प्लस का 8 एज इट इज. डिवाइड में जो भी टर्म्स बचती है सबको नीचे लेके आना होता है. अब इसकी फर्स्ट टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म को इक्वेट करेंगे तो एक तो अपने को प्लस के 3 की रिक्वायरमेंट है. ओके, उसके बाद एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब बनाने के लिए एक्स की रिक्वायरमेंट है. तो फर्स्ट टर्म तो आ जाएगी हमारी 3x स्क्वायर. सेकेंड टर्म हो जाएगी 6x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर. और लास्ट टर्म हो जाएगी हमारी 6x, तो प्लस 6x. हमें लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म अरेंज करना है. सपोज यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं होती तो 6x स्क्वायर को बिल्कुल लास्ट में लिख दें हम. ठीक है, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये कैंसिल डाउन. माइनस माइनस के माइनस 12x स्क्वायर आ गए. ये माइनस के 20x आ गए, प्लस का 8 आ गया. अब एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है, माइनस 12 की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे माइनस 12 राइट डाउन कर दो. दिस विल बी माइनस 12x स्क्वायर एंड दिस विल बी माइनस 24x एंड हियर माइनस 24. इट विल बी प्लस प्लस प्लस, कैंसिल डाउन. minus 20 plus 24, then plus 4x will be there, plus 8 plus 24 plus 32 will be there. जब आपको रिमाइंडर में डिवाइजर से जो ग्रेटेस्ट यहाँ पे डिग्री है, ये कहें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, रिमाइंडर की आपकी डिवाइजर से लेस रह जाए तो उसके बाद आपको डिवाइड नहीं करना, उसको वहीं पे छोड़ देना. अब आपने इसने पूछा रिमाइंडर, तो क्वोशिएंट तो रह गया आपका 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 12 और रिमाइंडर रह गया आपका 4x प्लस 32. डिवीजन एल्गोरिथम को आपको वेरीफाई करना है, तो 4x पावर 4 प्लस 11x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8. दिस विल बी इक्वल टू डिवाइजर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2. क्वोशिएंट 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 12. रिमाइंडर प्लस के 4x प्लस 32 एज इट इज. अब आप इसको सिंप्लीफाई करना है ताकि हम इसके इक्वल इसको ले सकते हैं. इक्वल टू एक्स स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x पावर 4. यहाँ करेंगे तो प्लस के 3x क्यूब. यहाँ करेंगे तो माइनस के 12x स्क्वायर. 2x से करेंगे तो प्लस के 8x क्यूब. यहाँ करेंगे तो ये प्लस के 6x स्क्वायर और इसके साथ करेंगे तो ये आया माइनस के 24x. अब 2 के साथ करेंगे तो प्लस 8x स्क्वायर प्लस 6x और माइनस 24 प्लस 4x और प्लस 32 एज इट इज. डिग्री 4 वाली एक ही टर्म है, 4x पावर 4. लास्टली राइट डाउन कर देंगे. क्यूब में 2 टर्म्स हैं, 3 एंड 8, तो टोटल 11 बन जाएंगे प्लस 11x क्यूब. स्क्वायर में देखते हैं 12x स्क्वायर है, 6x स्क्वायर है, 8x स्क्वायर है. तो 8 और 6 तो हैं आपके प्लस के, तो हो गए टोटल 14 और 12 माइनस के, तो प्लस के 2x स्क्वायर आपके बच जाएंगे. उसके बाद आपका x वाली टर्म्स देखते हैं आप. माइनस के 24 है, प्लस के 6 है, प्लस के 4 है, तो प्लस के 10 हो गए और माइनस के 24 हो गए, तो माइनस के 14x रह जाएंगे. कांस्टेंट टर्म में आपके पास माइनस 24 है, प्लस के 32 है, तो प्लस के 8 रह जाएंगे. अब आपका जो लेफ्ट हैंड साइड था वो और ये इसके इक्वल आ जाता है, तो आप यहाँ से आप वेरीफाई कर देंगे, हैंस वेरीफाइड. ये वेरिफिकेशन ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम होता है. देन इन दिस वे यू विल डिवाइड द क्वेश्चंस and after division you will prove the division algorithm. Okay, now see next one. डिवीजन एल्गोरिथम के बाद आपको देता है वो रिमाइंडर थ्योरम. हाउ विल यू फाइंड द रिमाइंडर
without actual division using remainder theorem. Now see, in remainder theorem he say, suppose there is a polynomial px with degree greater than or equal to 0, means constant polynomial नहीं है ये. Okay, then when we divide this polynomial by x minus a, suppose, then pa will be the remainder of the division. From here, from remainder theorem, we can find remainder only, we can't find quotient. Okay, so when we divide it by x minus a, then pa will be the remainder. Also, suppose px is any polynomial with degree greater than or equal to 1. If it is divided by x plus a, then p minus a will be the remainder. जो भी यहाँ पे प्लस का आएगा तो यहाँ पे माइनस का रखना, माइनस का रखना है तो यहाँ पे प्लस का रखना है. कहने का मीनिंग है, सपोज हमने x प्लस 7 से किसी को डिवाइड करना है तो रिमाइंडर डायरेक्टली क्या आएगा, x की वैल्यू आपको क्या रखनी है, -7 उसमें, तो आपके पास डायरेक्ट रिमाइंडर आ जाएगा. जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं और उसमें आपको उसका रिमाइंडर फाइंड आउट करके दिखाते हैं. एक बार एक्चुअल डिवीजन से करेंगे और एक बार फैक्टर थ्योरम से, जिससे रिमाइंडर थ्योरम से करेंगे. इसने कहा डिवाइड पी एक्स है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 12 बाई एक्स प्लस 2. Now divide x cube plus 3x square minus 2x minus 12, and by x plus 2 we have to divide. So firstly we will divide, and first term will be x square, so x cube and plus x 2x square will be there. It will be minus minus cancel down, x square is there, then minus 2x minus 12, then divide by x, making x as x square, and here it will be plus 2x, minus minus cancel down, minus 4x and minus 12. Now divide by minus 4, we get minus 4x and here minus 8, plus plus cancel down, minus 4. अपने पास रिमाइंडर आता है -4. ठीक है, ये एक्चुअल डिवीजन मेथड. अब अपने को x प्लस 2 से डिवाइड करना है, इट मीन्स p माइनस 2 विल बी द रिमाइंडर. देन पुट x क्यूब मीन्स -2 एंड इट्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर 3 इंटू -2 एंड इट्स स्क्वायर minus 2x minus 2 into -2 and minus 12. It will be -8 here, plus 3 into 4 and minus minus plus 4 or minus 12. -8 plus 3 4 जा 12 plus 4 minus 12. तो माइनस के तो 20 बनते हैं आपके पास और प्लस के बनते हैं 16 -4. वही रिमाइंडर यहाँ आता है आपका, वही रिमाइंडर यहाँ आता है. ये रिमाइंडर आपका रिमाइंडर थ्योरम से. रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको क्या करोगे, व्हेन वी डिवाइड px by x plus 2, then p minus 2 will be the रिमाइंडर. ओके, ये रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर आता है इसका. सो क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, एक तो एक्चुअल डिवीजन और एक रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर फाइंड आउट करना. देन इन दिस वे यू विल फाइंड द रिमाइंडर. कुछ और एग्जांपल्स देख लिए रिमाइंडर थ्योरम के. बोलता है यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर
when x cube, suppose px is polynomial in x cube plus 3x square plus 3x plus 1 इज डिवाइडेड बाई, फर्स्ट क्वेश्चन में देता है x प्लस 1, जब x प्लस 1, सेकेंड क्वेश्चन देता है इसका x माइनस 1/2, थर्ड देता है इसका x प्लस पाई। एक और भी है बट पहले ये देख लेते हैं। x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे फर्स्टली, तो p माइनस 1 रिमाइंडर रहेगा आपका। आपको लिखना है व्हेन वी डिवाइड px बाई x प्लस 1 देन p माइनस 1 विल बी द रिमाइंडर बाई रिमाइंडर थ्योरम। तो p माइनस 1 फाइंड आउट करेंगे, मीन्स माइनस 1 एंड इट्स क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 1 एंड इट्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 1, इट विल बी माइनस 1 प्लस 3 इंटू 1 3 माइनस 3 एंड प्लस 1, cancel down equal to 0। ओके, सेकेंड क्वेश्चन में आप फाइंड आउट करेंगे व्हेन वी डिवाइड द गिवन पॉलिनोमियल बाई x माइनस 1/2 देन p 1/2 विल बी द रिमाइंडर। पुट 1/2 एंड इट्स क्यूब प्लस 3 इंटू 1/2 एंड इट्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 1, it will be 1/8 plus 3 into 1/4 plus 3 into 1/2 plus 1, means 1/8 plus 3/4 plus 3/2 plus 1, taking 8 as the LCM we get 1 plus 4 2 जा, फिर 3 2 जा 6 plus 3 4 जा, ये 12 और plus 8, तो ये हो गया 27/8। 27/8 will be the remainder when we divide the given polynomial by x minus 2। okay, and C लास्ट थर्ड वन। देखिए थर्ड में आपके पास वो डिवाइड करने के लिए बोलते हैं बाई x प्लस 5। थर्ड वन x प्लस पाई से डिवाइड करना आपको, तो यहाँ पे आपको पाई की वैल्यू जो 22/7 है वो रिप्लेस नहीं करना है, यहाँ पे रिमाइंडर जो आएगा वो पाई में ही आएगा और पाई में ही आपको रिमाइंडर शो भी करना है। इट मीन्स p माइनस पाई विल बी द रिमाइंडर, सो x के प्लेस पे माइनस पाई रख दीजिए, क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस पाई एंड इट्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस पाई प्लस 1, इट विल बी माइनस पाई क्यूब, ओके, प्लस 3 पाई स्क्वायर, माइनस पाई का स्क्वायर तो पाई स्क्वायर, और माइनस 3 पाई और प्लस 1, दिस विल बी द रिमाइंडर। नो नीड टू रिप्लेस पाई विद 22/7। इफ द क्वेश्चन गिवन इन MCQs and then the options are in numerical values and divisor is x plus pi, then we will replace pi by 22/7. In that condition we will replace, otherwise simply he ask about the remainder, so simply you will write in pi। again the question is find the remainder when this is divided by this, same question आपका। उसके बाद चेक करने के लिए बोलता है चेक वेदर, तो चेक में आपको क्या करना है, रिमाइंडर थ्योरम से आपको इसका रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, और अगर आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो उसका फैक्टर है, अदरवाइज वो फैक्टर नहीं, या मल्टीपल बोल दे। इसने कहा चेक वेदर द पॉलिनोमियल ft, और पॉलिनोमियल देता है 4t³ प्लस 4t² माइनस t और माइनस 1 इज द मल्टीपल ऑफ 2t प्लस 1। सो वी विल राइट इफ 2t प्लस 1 और ft इज द मल्टीपल ऑफ 2t प्लस 1, देखिए हमने लिखा इफ, देन
p -1/2। यहां से जब इसको 0 के इक्वल रखोगे तो t की वैल्यू कितनी आती है, -1/2 विल बी इक्वल टू 0। मीन्स अगर ये इसका मल्टीपल है, जब इससे इस पर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका 0 आना चाहिए। तो रिमाइंडर थ्योरम से आप रिमाइंडर शो कर देंगे किसका, 0 आना चाहिए। देन p f -1/2 will be 4 -1/2 and its cube plus 4 -1/2 and its square minus -1/2 and -1. Okay, then f -1/2 equal to 4 into -1/8 plus 4 into 1/4 plus 1/2 और -1। यहाँ पे आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -1/2, यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो +1 प्लस 1/2 और -1। हाफ नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल डाउन, 1 पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल डाउन इक्वल टू 0। रिमाइंडर 0, तो आप बोल देंगे हियर रिमाइंडर इज 0, so we can say that ft is the multiple of 2t plus 1। ओके, सो ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा। सी नेक्स्ट, इसके बाद भी क्वेश्चन वही देता है। जैसे एक क्वेश्चन पूछा है इसने, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस सो दैट पी एक्स इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x - 1। राइट द रिजल्टेंट पोलिनोमियल विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x - 1। आपसे पूछता है कि व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, कि इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए। तो सिंपली क्वेश्चन पहले पॉलिनोमियल को छोड़ के अगर मैं ये कहता हूँ, जैसे क्वेश्चन पूछे व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 237 सो दैट इट विल बी डिविजिबल बाई 4, तो आप क्या करते हैं 237 पे 4 का डिवाइड करेंगे। 4 5 जा 20 जाएगा, ये 3 7 अब 4 9 जा 36 होता है, तो 1 रिमाइंडर। तो ये रिमाइंडर जो है ये एक्स्ट्रा है इसमें, अगर ये नहीं होता है इसमें तो ये 4 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता। सो द सब्ट्रैक्टेड नंबर इज 1, वी विल राइट हियर। इन सेम वे in given polynomial questions we will divide the given polynomial by polynomial and then a remainder will be the subtracted polynomial. He say px x power 4 plus 1 and when it is divided by x minus 1, so divide x power 4 plus 1 एक अच्छा डिवाइड भी हो जाएगा आपके लिए। x - 1 से आपको डिवाइड करना है, तो फर्स्ट डिवाइड तो x क्यूब पे चला जाएगी x4। अब यहाँ मल्टीप्लाई करें तो माइनस का x क्यूब आता है और x क्यूब यहाँ पे कोई टर्म नहीं है, तो हमने कहा था इसको बिल्कुल अलग से लिखना है, माइनस प्लस ये कैंसिल डाउन। फिर हमने बताया जो भी पॉलिनोमियल आएगा, ये सपोज 1 प्लस x क्यूब आता है, लेकिन हमने क्या कहा था आपको डिवाइड में कि जो पॉलिनोमियल आता है उसकी जो एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल्स हैं उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो यहाँ पे इसको जब अरेंज करेंगे तो ये आएगा x क्यूब और प्लस 1। सेकंड डिवाइड जाता है प्लस एक्स स्क्वायर पे, तो ये आएगा एक्स क्यूब। यहाँ इसको मल्टीप्लाई करें तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी अलग से राइट डाउन करेंगे, माइनस ये प्लस कैंसिल डाउन। अगेन एक्स स्क्वायर को फर्स्ट राइट डाउन करेंगे, फिर प्लस का 1 राइट डाउन करेंगे। एक्स से डिवाइड किया तो प्लस के एक्स पे डिवाइड चला जाएगा, मीन्स ये आएगा एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स, ये भी अलग से राइट डाउन करना पड़ेगा, x प्लस 1। अब डिवाइड जाएगा प्लस के 1 पे, तो ये तो आ गया x और ये आ गया माइनस का 1, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल डाउन प्लस 2। तो जो रिमाइंडर आता है वो कितना आता है 2। सो हियर वी विल राइट वी मस्ट सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम px फॉर एग्जैक्ट डिवाइड बाई x - 1। ओके, so this type question also you will find in your book.
some other questions are there that we will discuss in our next video. So for today, you only divide the questions, verify division algorithm, and remainders by a remainder theorem. After that, our next topic is factorization method, or how you will factorize the given polynomial. Okay, so for today you have to solve only division questions or remainder theorem questions. Thanks.